साबिक चीफ मिनिस्टर आंजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और आंध्र प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन की जानिब से तेलंगाना में एक नई सियासी पार्टी कायम करने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। उन्होंने शहर के पॉश इलाके जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह लोटस पॉन्ड में अपने वालिद के वफादारों के साथ मशावरत की। शर्मिला आने वाले चंद दिनों में मजीद लोगों से मशावरत करेंगी और मार्च तक उनकी नई पार्टी के क़याम का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। करीबी ज़राए के मुताबिक शर्मिला की नई पार्टी का नाम वाईएसआर तेलंगाना पार्टी होगा और इससे इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के अमल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शर्मिला कल रात अपने शौहर अनिल कुमार के हमरा बेंगलुरु से हैदराबाद पहुंची थी। शर्मिला को वाईएसआर कांग्रेस के कई हामियों की तायद हासिल है। तेलंगाना में अरसे से ये ख्यास आराइयाँ की जा रही थी कि राजशेखर रेड्डी की दुख्तर एक नई पार्टी कायम करते हुए टीआरएस का मुतबादिल फराहम करेंगी। उन्होंने 2012 में अपने भाई जगन मोहन रेड्डी के जेल में रहने के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की क़यादत की थी और पूरी रियासत का दौरा किया था। हर जगह उनका वालियाना खैरमकदम किया गया, जिससे शर्मिला की अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शर्मिला ने 2014 और 2019 में वाईएसआर कांग्रेस की ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जिसकी बदौलत उनके भाई जगन मोहन रेड्डी को 2019 में इख्तिदार मिला। అంటే ఈరోజు ఎవరెవరితో మీటింగ్ అయ్యారు? రానున్న రోజుల్లో ఏ జిల్లాల వాళ్ళతో మీటింగ్ ఉంటుంది? ఈరోజు నల్గొండ జిల్లా వాళ్ళతో కలవడం జరిగింది. వాళ్ళ అభిప్రాయాలను, వాళ్ళ సూచనలు, వాళ్ళిచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారాన్ని అన్నీ వినడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం అవ్వడం జరిగింది. కానీ క్లియర్లీ దిస్ ఫెసిలిటీ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్ అనేది మనకు అర్థమైంది. మిగతా జిల్లాల్లో కూడా మిగతా జిల్లాల వాళ్ళతో కూడా కలవాలి కనుక మేబీ ఈసారి ఆ జిల్లాలకే వెళ్తామేమో. బట్ విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. పార్టీ ఎప్పుడు పెట్టబోతున్నారు మేడం? పార్టీ ఎప్పుడు పెట్టబోతున్నారు? పార్టీ పెట్టబోతున్నానని మీరు డిసైడ్ అయిపోయారా? అందుకోసం ఈ మీటింగ్ ఉద్దేశం ఏంటి? రాజన్న రాజ్యం మళ్ళీ రావాలి అంటే పాత వైఎస్ఆర్సీపీనే కంటిన్యూ అవుతుందా రాష్ట్రంలో, లేదంటే కొత్త పార్టీ ఏర్పడగలదా మీ ఆధ్వర్యంలో? తెలియదు, చూద్దాం. రాష్ట్రం ఏర్పడి 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 8 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రాజ్యాన్ని రాజ్యం అవసరమని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడే అవసరమని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ రాష్ట్రం ఎట్లా ఉంది? మీరు చెప్పండి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది? రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారా? ఎట్లా ఉంది మేడం? విద్యార్థులందరూ ఉచితంగా చదువుకోవాలి. మేడం, ఇప్పుడు రానున్న రోజుల్లో ఏ జిల్లాల వాళ్ళతో What is this? కాదు అంటే జిల్లాల వాళ్ళతో మళ్ళీ మీటింగ్ అవుతారా? మీరు జిల్లాలోకి వెళ్తారా మేడం? అంటే జిల్లాల నేతలతో మళ్ళీ మీరు మీటింగ్ అవుతారా రానున్న రోజుల్లో? ఇప్పుడు నల్గొండ వాళ్ళతో మాత్రమే అవ్వడం జరిగింది. ముఖ్య అజెండా రాజన్న రాజ్యం తేవాలి అని నాకు కోరిక ఉంది. ఏ రకంగా తేవాలనుకుంటున్నారు మేడం? అది ఏ విధంగా తేవాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఇవన్నీ డిసిషన్స్ రావడానికే ఈ రోజు లాంటి సమావేశాలు ప్రతి జిల్లా వాళ్ళతో పెట్టడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు పెడతారా, లేదంటే వారానికి ఒకసారి పెడతారా? ఒక క్లియర్ ఎజెండా ఏమైనా ఉందా ఈరోజు తీసుకున్నాను? వారానికో రెండో లేకపోతే వారానికి కనీసం ఒకటో. అంటే నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఎప్పుడు షెడ్యూల్ ఏమైనా రెడీ అయిందా? ఏ జిల్లా నెక్స్ట్ అంటే? నల్గొండ వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్ గా ఉన్నారు, చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు. రాజరాజన్ తప్పకుండా తేవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటున్నారు, అవకాశం కూడా ఉంది అంటున్నారు. చాలా పార్టీ రిజిస్టర్ చేశారు మేడం? పార్టీ ఎప్పటిలోపు అయిపోయే అవకాశం ఉంది? ఎప్పటిలోగా ఇవన్నీ పార్టీ సమావేశ సభలు మేడం ఇంగ్లీష్ దేవాలయం
मैडम व्हाट इज योर एक्शन प्लान? మేడం 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 తెలంగాణ రాష్ట్ర గారి మద్దతు ఉందా లేదా? మీ మీటింగ్లకు జగన్ గారి మద్దతు ఉందా లేదా? లేదని మీకు చెప్పాడా? సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు తోడబుట్టిన అన్న, వయసులో నాకంటే పెద్దవాడు. ఆయన ఆశీస్సులు ఉన్నాయని నేను నమ్ముతున్నాను. అంటే తెలంగాణ ప్రజలు హ్యాపీగా లేరా మేడం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా? మీరు చెప్పండి. మీరు కదా అంటే మీరు లేదు, నేను చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. మీకు ఇవాళ నల్గొండ ఫీడ్బ్యాక్ లో ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది మేడం? ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివ్ గా వచ్చిందమ్మా, మీతో మాట్లాడాలి. साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि रियासत में माली बैकायदगियों के बारे में 15वें इकनॉमिक फोरम ने संगीन इल्जाम आयद किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में काफ़ी धांधलियाँ हुई हैं और ये प्रोजेक्ट किसानों से कहीं ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। साबिक वजीर ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ज़रूरी कार्रवाई करते हुए धांधलियों में मुलविस अफराद को जेल को भिजवाए। शब्बीर अली ने रियासत की जामियात के वाइस चांसलर के तकर्रुरात के लिए गवर्नर की हिदायत का खैरमकदम किया। शब्बीर अली ने कहा कि टीआरएस हुकूमत में औकाफी जायदादों की ज़बरदस्त पामाली हुई है। उन्होंने आगे चलकर कहा कि कांग्रेस के दौर में जो औकाफी जायदादें थीं उनमें से बेशतर पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। उसको अब वक्फ बोर्ड वाले भेज दे रहे। शर्म की बात है, वक्फ बोर्ड पूरा चोरों का अड्डे के ऐसा बन के वो सब जायदादों को तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज शाहनवाज कासिम साहब का ये है कि कोई परमिशन हम नहीं देंगे, जितने तुम दिए वो सब रिवर्स कर दिए। इससे और क्या सबूत होना? हुकूमत को चाहिए कि बोर्ड को एक मिनट भी नहीं रखना, सुपरसेट कर देना चाहिए, फौरी सुपरसेट कर देना चाहिए। सब परसों जो इसी कमेटी को फखर गुरूर इतना आ गया है कि वो अपने आप में जिस तरीके से उन्हें तारीफ मालूम होना चाहिए कि किसी की भी एक ऊंचाई पे जाने के बाद फिर नीचे गिरना ही है, उरूज के बाद जवाल है। हमारे केसीआर नहीं समझ रहे कि हमेशा ऐसे ही रहूंगा। चीफ मिनिस्टर का पोस्ट एक चप्पल के बराबर है, मेरे फुट के बराबर है, लात मार तो मैं बोल रहे। अब आवाम लात मारेंगी, बहुत करीब है। चीफ मिनिस्टर को वही लात से वही चप्पल से इनकी बजिंग करेंगे, इनको गद्दी से उठाएंगी, कांग्रेस को बिठाएंगे। थैंक यू। लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ये तमाम देने के बाद ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। यही बात कांग्रेस ने कहते हुए आ रही 5 साल से। अरे भाई केसीआर साहब समझो यार, कर्जे में डुबा दे रहे हो और पूरे स्टेट को। लेकिन ये बात अब हुकूमत को कहा और ये भी सीरियस कहा कि जो अमाउंट लोन है उसको सरप्लस रेवेन्यू बताए। ऐसे ऑफिसरों पर फौरी उन पर एक्शन होना, ये जेल भिजाना बेटा। ये चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स कैसे झूठ लिखे? ये कमीशन बोल रहा है कि खर्च के अमाउंट को रेवेन्यू अमाउंट कैसा बना सकते। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस जो बनाया था 4 साल में स्टेट फाइनेंस अभी तक क्यों नहीं बना। तीसरी बात ये कही उन्होंने कि जो खर्चा किया गया है उसकी उतनी आमदनी नहीं आ रही, तो ये दिन ब दिन खर्चों के अंदर ये स्टेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है इस स्टेट के अंदर। तीसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। उसको गवर्नर साहिबा ने भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि कहा कि भाई यहाँ वाइस चांसलर्स अभी तक 3 साल से खाली पड़े हुए हैं, उसको फौरी भर्ती करो। प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, लेबोरेटरी मैन नहीं है। कैसे कॉलेजें चलेंगे, कैसे यूनिवर्सिटीज बनेंगे? एक दौर था उस्मानिया का नाम ऑक्सफोर्ड के बराबर टिकाया जाता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इक्वल था निजाम सरकार के ज़माने। आज हम कहाँ हैं? हमारी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटीज में एक नाम भी नहीं है तेलंगाना यूनिवर्सिटी का नाम। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन ने कालेश्वरम पे, फाइनेंस पे और आपके एम्प्लॉयमेंट पे, पानी में भी कहा कि मुल्क में 89% पीने का पानी मिल रहा है, लेकिन तेलंगाना में 77% ही पानी लोगों को दस्तयाब है। मगर केसीआर केटीआर डब्बा मार रहे, और वो पानी भी कृष्णा वाटर कांग्रेस ने लाई, गोदावरी वाटर कांग्रेस लाई। जब मैं वजीर इंचार्ज मिनिस्टर था, राजशेखर रेड्डी सीएम थे,
सब कांग्रेस के दौर में है, इनके दौर में कुछ नहीं है। लेकिन तो इसीलिए मेरा डिमांड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर एक्शन ले, स्टेट पे और स्टेट के ऑफिसरों पे ले। और अब जो बजट तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर बजट बिल्कुल सही बजट होना चाहिए, आवाम को इस पर भरोसा होना है। जैसा कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आप हजारों करोड़ बोल रहे, खर्चा आपका 500 करोड़ भी नहीं कर रहे, तो 40% भी नहीं हुआ अभी तक खर्चा माइनॉरिटी फाइनेंस का, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, एससी डिपार्टमेंट का, एसटी डिपार्टमेंट का, बीसी डिपार्टमेंट का। फिर भी एससी एसटी को वो सेंट्रल फंड होने से थोड़ा बहुत है, लेकिन बीसी एंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को तो 40% से भी कम बजट खर्चा हुआ। तो हाथी के दिखाने के दांत अलग है, बताने के दांत है। बात केसीआर साहब बहुत क्या करे भाई, केसीआर 12% रिजर्वेशन लाए और खफी जायदाद की तबाही हो रही है। कल भी पेपरों में आज भी हम देखें कि खफी जायदाद को कैसा तबाह कर दे रहे हैं। वो अफजलगंज का खबरस्तान को मैं 93 में, आप जरा गए तो कभी खबरस्तान का फोटो दे उतारो, वो पत्थर पे लिखा हुआ 93 में वही उसको हिसारबंदी कराया, 93 में कब्जा हो रहा बोलते। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने कहा कि रियासत में तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज़राई शोबे में इनकलाबी इस्लाहात लाए हैं, जिससे किसानों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आई हैं। जिले राजन्ना सिलसिला के गंभीर राव पेट मंडल में रैतु वेदिका का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे से खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां किसानों के लिए रैतु बंधु स्कीम शुरू की गई। इसी से मुतासिर होकर मरकजी हुकूमत ने भी किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू की है। ज़राई शोबे को फायदा पहुंचाने टीआरएस हुकूमत किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है। इससे किसानों की काफ़ी मुश्किलात कम हुई हैं। उन्हें बोरवेल और कुओं पर इन्हिसार करना नहीं पड़ रहा है। बरखी की सरबराही के बार बार मुनक़ता होने की वजह से किसानों को रात में खेतों में काम करना पड़ता था। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शिव कुमार लाल पुलिस स्टेडियम गोशामहल में हैदराबाद सिटी पुलिस के सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का इफ्तिताह किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने खैर मकदम किया। इस मौके पर सिटी पुलिस के आलादार भी मौजूद थे। इन मुकाबले में सिटी पुलिस के तमाम शोबेजा से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन हिस्सा ले रहे हैं। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत मवेशियों की बेहतर से बेहतर निगहदाश्त के इक़दाम कर रही है। श्रीनिवास यादव ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सदनशीन वल्लभ भाई कटारिया से मुलाकात के दौरान ये बात बताई। उन्होंने कटारिया को, जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, ज़राई शोबे को फ़रोग़ देने, गाय पालन करने वालों को सब्सिडी देने की स्कीम से भी वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत तमाम गौशाला को रियायती कीमत पर चारा सरबराह कर रही है। रियासती बीजेपी के तर्जुमान और साबिक़ रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी की ताकत को कम करने के लिए टीआरएस और मजलिस एक साजिश के तौर पर शर्मिला को रियासती सियासत में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शर्मिला के सियासत में दाखिले और पार्टी के क़याम के बाद बीजेपी का कोई भी सरकर्दा लीडर नई जमात में शामिल नहीं होगा और न ही बीजेपी के वोट बैंक को कोई धक्का लगेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कमजोर तबक़ात की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ टीआरएस हुकूमत के दावों को बेबुनियाद करार दिया। प्रभाकर ने कहा कि रियासत में दलितों और कमजोर तबक़ात के साथ हर शोबे में नाइंसाफ़ी की जा रही है। निकम्मी सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है और रेड नेपोटिज्म हर दिन बढ़ते जा रहा है। दलित को वंचित किया है, बीसी को वंचित किया और अनएम्प्लॉयड यूथ को वंचित किया है और एम्प्लॉयज़ को भी वंचित किया है। आज जो केसीआर ने पहले से बात बताते आया है उसके खिलाफ में उनका सरकार चल रहा है और साथ साथ में और 10 साल मई मुख्यमंत्री बोल के बता रहे हैं। आज वो बात चले गया है और केसीआर और 3 साल रहना बाद भी भूल जाना पड़ रहा क्योंकि एक जगह से केटीआर और एक जगह से ईटल राजेंद्र दोनों का दबाव बढ़ गया, इसलिए केसीआर केवीपी का मदद ले रहा है। शर्मिला से नया पार्टी को लागू करना और कम्युनिस्ट को, MIM को, कांग्रेस को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए सोच चल रहा है। इसलिए MIM के जो भी MLAs हैं उनके खिलाफ में कम्युनल क्लैशेस का केसेस जो है उसको रिहाई कर रहे हैं
और कांग्रेस लोग का जो केसेस है उसको भी दूर कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं के ऊपर दबाव रख रहे, केसेस बढ़ा रहे और केसेस बढ़ रहा है। राजा सिंह का विषय देखे तो मालूम हुआ और हर दिन बंडी संजय के ऊपर एक ने तो एक नया केस को लागू कर रहे। ऐसा कितने दिन ये लोग चलाएगा देखते हैं हम भी। जरूर जो हुजूरनगर गुर्रमपाड़ू का एसटी ट्राइबल लैंड्स के बारे में जो मामला हुआ है उसके ऊपर जांच करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ट्राइबल्स को लैंड्स मिला है, लैंड्स के ऊपर उनका अधिकार है उस जमीन पर। और आज के दिन केसीआर के साथी लोग, केसीआर के पार्टी लोग, केसीआर के विधायक लोग कब्जे पे बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ में रवाई करने के लिए केसीआर आगे नहीं आ रहे। जरूर इसके ऊपर जांच करने का जरूर है बोल के मैं बीजेपी डिमांड करते हुए ये पूरे इलीगल केसेस को निकाल देना बोल के मैं डिमांड करता हूँ। रियासत में कोविड-19 वैक्सीन के टीकेंदाजी के दूसरे मरहले में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस स्वाति लाकरा और डीआईजी सोमती ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम में टीका लगवाया। स्वाति लाकड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर कोई टीका ले तो इससे पूरे समाज को फायदा हो सकता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कोविड-19 वैक्सीन के कोई मुज़िर असरात नहीं है। కోవిడ్ గురించి వ్యాక్సినేషన్ కోసం ఇక్కడ సరోజినీ దేవి హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది అండ్ నేను తీసుకున్నాను, నా డిఐజీ గారు సుమతి గారు కూడా తీసుకున్నారు, నా ఆఫీస్లో ఉన్న చాలామంది స్టాఫ్ కూడా తీసుకున్నారు. సో అందరు తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సేఫ్ వ్యాక్సిన్ అండ్ అందరు తీసుకుంటే మన సొసైటీకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. मौसम सरमा ने जाते जाते फिर एक बार शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तेलंगाना में रात के औकात में दर्जे हरारत में ज़बरदस्त कमी हो रही है, जिसके नतीजे में सर्दी बढ़ गई। मौके में मौसमियात के मुताबिक बिलुमुम फरवरी में दर्जे हरारत 18 डिग्री होता है, जो कि इस मरतबा घटकर 15 डिग्री हो गया है। हैदराबाद में पीर को मौसम 15.7 डिग्री था। अजला, कुमारा भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल और कामारेड्डी में सख्त सर्दी रिकॉर्ड की गई है। रात के औकात में सर्दी में इजाफे की वजह से लोग घरों में खुद को बंद रखने पर मजबूर हो गए हैं। रियासत में एसएससी के इम्तिहानात का पीर 17 मई से आगाज होगा और शाहशंबा 22 मई तक ये इम्तिहानात जारी रहेंगे। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेस नोट के मुताबिक इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे था 1:45 बजे दिन रहेंगे। पहला पर्चा फर्स्ट लैंग्वेज का होगा, दूसरा 18 मई को सेकेंड लैंग्वेज, 19 मई को अंग्रेजी, 20 मई को रियाजी, 21 मई को साइंस और 22 मई को सोशल स्टडीज का इम्तिहान होगा। 22, 24, 25 और 26 मई को ओएसएससी और एसएससी वोकेशनल के इम्तिहानात होंगे। कंज्यूमर कोर्ट ने पंजागुट्टे में वाक़ सेंट्रल माल को अपने माल के लोगों के साथ पेपर बैग के लिए 10 रुपये चार्ज करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। कवादीगुड़े के डी बेजम ने माल की एक दुकान से 1400 रुपये में एक शर्ट खरीदा और उन्हें बैग देते हुए उससे 10 रुपये लिए गए थे। बेजम की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने यह जुर्माना आयद किया है। एलबी नगर पुलिस की एसओटी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि मलकपेट में चलाए जाने वाले अल हयात टूर्स एंड ट्रैवल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद नसीर और उसकी बेटी 23 साला सुमैया फातिमा मफरूर हैं। गिरफ्तार शुजान में ट्रैवल एजेंट शेख मोहम्मद इम्तियाज, सुब्बम्मा, ड्राइवर सुब्बा रायडू और हारून बताए गए हैं। महेश भगवत ने बताया कि मुलजिमीन ने मेदीपल्ली के खातून को वर्क वीज़ा की बजाय विजिट वीज़ा पर मस्कत भेजने की कोशिश की थी। दावे के दौरान 40 पासपोर्ट्स और काबिल एतराज़ दस्तावेजात की जब्ती भी अमल में आई है। उन्होंने बताया कि सुब्बम्मा और सुब्बा रायडू आंध्रा से लोगों को बैरूनी ममालिक में रोजगार दिलाने का झांसा देकर हैदराबाद लाते थे और इस ट्रैवल एजेंट से रुजू करते थे। ఈ బోగస్ ఏజెంట్స్ ద్వారా ఇలాంటి ఈ కడప గ్యాంగ్ కావచ్చు, ఇంకొన్ని కావచ్చు, మన దగ్గర కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ఇలాంటి బోగస్ ఏజెంట్స్ ద్వారా దయచేసి నో వన్ షుడ్ గో అండ్ గెట్ దేర్ లైఫ్ స్పాయిల్. అదే మా రాచకొండ కమిషనరేట్ తరఫున విజ్ఞప్తి. ఈరోజు ఈ మన ఎస్ఓటి ఎల్బీ నగర్ వాళ్ళు చాలా మంచి పని చేశారు. దే హ్యావ్ అరెస్టెడ్ దిస్ గ్యాంగ్ who is in the business of
sending these people via this bogus document and on the visit visa, not on the work visa. At the same time, they were trying to sexually exploit also the victim women. So this kind of activities which are against the law will not be tolerated at all. We will definitely take action on them. Remaining accused also will arrest them and will ensure that cases against them will get convicted. ఈ accused మీద section 420 IPC, తర్వాత 509 IPC and section 25 of Immigration Act దాని కింద కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది. మాకు తెలిసిన విషయం అంటే ఈ లోకల్ ఏజెంట్ కి ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తే లోకల్ ఏజెంట్ కి 1 लाख రూపాయల దాకా వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ వాళ్ళకి ఈ లోకల్ ఏజెంట్ ని ఎవరు రిక్రూట్ చేస్తారు, వాళ్ళు 3 to 4 लाख రూపాయలు మినిమం ఒక వ్యక్తితో సంపాదిస్తారు. సో థ్యాంక్ యూ. इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर शिवा चंद्रा ने अपने हुदूद में रहने वाले तमाम रौडी शीटर को पुलिस स्टेशन तलब करके उनकी काउंसलिंग की और उन्हें गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत दी। इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने कहा कि वो अपने इलाके में गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने तो बांग्लादेशी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और फर्जी मालूमात के जरिए हिंदुस्तानी पासपोर्ट हासिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 हेड कांस्टेबलों को भी गिरफ्तार किया है जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की हासिल कर चुके हैं। मी सेवा सेंटर के एक मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने इन 2 बांग्लादेशी शहरियों को 4 फरवरी को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने बोधन स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबलों मल्लेश और अनिल कुमार की मदद से 4 साल कबल हिंदुस्तानी पासपोर्ट हासिल किए थे। आंध्र प्रदेश में 2723 पंचायतों के चुनाव के लिए आज रायदही हुई। 20,157 वार्ड मेंबरों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 4 मरहलों में इंतखाबात करवाने का शेड्यूल जारी किया था और आज पहले मरहले की रायदही हुई। जुमला 7,556 उम्मीदवार सरपंच के ओहदे के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि वार्ड मेंबर्स के मुकाबले में 43,601 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये दोनों इंतखाबात सियासी जमातों के इम्तियाजी निशान के बगैर और बैलेट पेपर के जरिए हो रहे हैं। पुलिस ने पूरी रियासत में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में हुए हंगामों के सिलसिले में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर और मुमताज सहाफी राजदीप सरदेसाई समेत 6 दीगर सहाफियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की ज़ेर-ए-क़यादत एक बेंच ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए उसे जवाब मांगा है। दीगर 6 सहाफियों में मृणाल पांडे, जफर आगा, हरीश नाथ, विनोद के जोजे और अनंतनाथ शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने तमाम पर गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इनकी वजह से हंगामे दूसरे इलाकों तक फैल गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कांग्रेस के अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद से अपने ताल्लुकात को याद करते हुए राज्यसभा में रो पड़े। गुलाम नबी आज़ाद और दीगर 3 अरकान निसार अहमद लावे, शमशीर सिंह मिन्हास और मीर फैयाज आइंदा हफ्ते ऐवान की रुकने से सबकदोश हो रहे हैं। उन्हें ऐवान में पुरस्कार तौर पर विदा किया गया। नरेंद्र मोदी ने इन तमाम अरकान की खिदमत की सिताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की सबकदोशी के बाद ऐवान में जो खला पैदा होगा उसका पूर्ण होना मुश्किल है। गुलाम नबी आज़ाद को न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि मुल्क और ऐवान के बारे में बड़ी फिक्र रहती थी। उन्होंने कोविड-19 के मसले पर कुल जमात इजलास की तलबी की अपील की थी। चुनाचे ये इजलास तलब भी किया गया। गुलाम नबी आज़ाद को हुकूमत और अपोजिशन में बैठने का तजुर्बा मिला है और 28 साल का तजुर्बा बहुत बड़ी बात होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे, गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और इस तरह दोनों एक दूसरे के राब्ते में रहा करते थे। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे।
फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।